Hello student, welcome back to Agda Code. In today's video, I'll discuss complete cognizant Gen interview preparation. एकदम मैंने 200 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन रीड किया बेस्ड ऑन प्लस डीएन प्रोग्राम अभी जो हुआ उसका इंटरव्यू क्वेश्चन प्लस कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्वेश्चन का बेसिस में फुल में डिस्कस करूंगा तुमको क्या पढ़ना है व्हाट एक्चुअली नीड टू स्टडी एग्जैक्ट क्वेश्चन आल्सो आई डिस्कस so that you will know एक्चुअली इंटरव्यू में क्या आता है ऐसा नहीं सिर्फ उस पढ़ो उसमें एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन आता है कोडिंग में कौन सा आई डिस्कस एवरीथिंग आफ्टर एंड ऑफ द वीडियो यू विल नो what exactly to study. Okay, let's start. First, I'm starting with coding part. Coding, the most frequently coding question first from the loop, they have asked Fibonacci series. Fibonacci. You must know Fibonacci series and all types of number. All types of number means palindrome number, prime number. They have asked multiple times Fibonacci series and palindrome, and also prime number and other number also must be no strong number, Armstrong number. Where you can study in this channel, I have already made video about this regarding palindrome number, prime number. You must know. They have asked multiple times this question, and the second is pattern printing. Pattern printing. And also prime number, strong number, palindrome number. Palindrome acts actually 4 to 5 times. Fibonacci says also 5 times. I have read multiple interview experience. And pattern printing, they have mostly acts like this one. This. You must know this pattern printing. This is pyramid, and you should know one triangle also. This one, and sometimes they ask this one also. This is whole pyramid. And after that, they do not actually function. They ask from the array. Array, they commonly ask question like implement binary search. Directly asks in the interview implement binary search. And also you need to explain the time complexity and space complexity. You need to do code. After code, you must explain the TC also. And TC is log n. Maybe not no need to explain. Just you need to tell the TC is log n and space complexity big of 1. And one of the most important sorting. And from the sorting, they commonly ask bubble sort, and merge. Two common sort they have asked, bubble sort and merge sort. And from the sub array, as I mentioned, sub array most important part. Next, only the maximum sum of sub array, the Kedan algorithm. Most important, maximum sum of sub array, maximum sum of sub array, or Kedan algorithm or Kadan algorithm. If just check my YouTube video. I have made video around the array. Here you can find the Savary topic also. Savary, the Kadan algorithm. Just one they have asked. बहुत ज़्यादा इसको पूछता है. Actually, इस ये इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरव्यू नॉट ओनली इंटरव्यू ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है कॉग्निटिव एजेंसी का मैक्सिमम सम ऑफ Savary. And that is from the array part. And they can also ask reverse array. Yes, reverse array. They have asked. There is sub company, not only Cognizant Agency, Capgemini or TCS or Infosys, same question. The reverse array. The next then go to the string. And from the string, the common is palindrome string or string reverse. Palindrome string or string reverse or anagram. Anagram. This is common question asked from the string. There's a multiple question like frequency count, but they have multiple time asked palindrome string reverse, and anagram. And
You must know array l- and string and recursion basic you must know, and linked list also. I saw there's a Gen sorry, DN program or Gen Z interview. They ask question from the linked list also, and the question is remove duplicate element from unsorted. Remove duplicate. द ये क्वेश्चन डीएन प्रोग्राम रिसेंटली जो डीएन प्रोग्राम है उसमें भी पूछा था और जेएनसीबी में भी पूछा था 2024। रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट और नोड एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम करना ही है लिंक लिस्ट। इसके अलावा क्या करना है लिंक लिस्ट में? यू मस्ट डू द रिवर्स इन द लिंक लिस्ट। द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए और इसका थ्योरी थ्योरी तो आना चाहिए लिंक लिस्ट का। देन रिवर्स लिंक लिस्ट, उसके बाद डिटेक्शन लूप। ये तो बोला रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम फ्रॉम लिंक लिस्ट। इसमें दो होते हैं, एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट, एक अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। तुमको दोनों आना चाहिए, यू मस्ट नो बोथ। ये मीडियम क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों 4 LPL के दे है बाक। 4 LP के लिए पूछना तो नहीं चाहिए। एंड रिवर्स लिंक लिस्ट एंड डिटेक्शन लूप इन लिंक लिस्ट। और तुम इतना करोगे तो हो जाएगा तुम्हारी लिंक लिस्ट में। रिवर्स डिटेक्शन लूप एंड रिमूव एलिमेंट फ्रॉम लिंक लिस्ट इंपॉर्टेंट। और एरे में और एक क्वेश्चन कर लेना, मार्ज टू सॉर्टेड एरे। मार्ज टू सॉर्टेड एरे। स्टैक क्यू से पूछता है, पूछता नहीं है, स्टैक क्यू से भी पूछता है लेकिन बहुत कम। यहाँ पे तुमका बेसिक करना है स्टैक क्यू का इम्प्लीटेशन। स्टैक क्या होता है, इसका थ्योरी। थ्योरी दे कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर, so you must be know the theory of stack queue, LIFO, FIFO rules and what is the function of the stack and queue, also basic implementation तुमको आना ही चाहिए। पहले पूछ नहीं पूछता था 4 पे, मैं अब पूछना शुरू कर दिया तो तुमको आना चाहिए। ज्यादा नहीं, जस्ट बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। एंड ट्री का तुम्हें बाइनरी ट्री कैसे बनाना आना चाहिए। बाइनरी ट्री एंड बीएसटी आना ही चाहिए कैसे, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। नो नीड कोड तो चाहिए, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं चाहिए, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन। एंड साथ में इसका थ्योरी आना चाहिए, मस्ट बी। एंड ग्राफ, ग्राफ में तुमको थ्योरी आना चाहिए। जनरली पूछता नहीं ग्राफ, अगर पूछ लिया तो समझे तुमको नहीं चाहता, क्योंकि 4 पे ग्राफ कोई भी कंपनी नहीं पूछता, लेकिन थ्योरी पूछेगा कोई भी कंपनी। लाइक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा एल्गोरिथम, डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ग्राफ क्या होता है, डीएफएस मुझे एक्सप्लेन करो। तो थ्योरी तो पूछेगा कोई भी कंपनी। तो इतना अगर कर लोगे तो तुम्हारा जेएनसी का प्रिपरेशन हो गया। और भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा लेकिन ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है, तुमको ये मस्ट पढ़ना ही है। मूविंग टू द उप्स, नेक्स्ट पार्ट उप्स और कोर सब्जेक्ट। फर्स्ट कोर सब्जेक्ट बिलोंग्स थ्रू उप्स। You must know what is OOPS, class, the difference between class and object. The question asks multiple time like what is OOPS? और OOPS से पहले क्वेश्चन ही कोई भी इंटरव्यू आस्क करते हैं व्हाट इज OOPS और व्हाट इज क्लास। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है। एंड क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर अगर कोई एग्जाम्पल हुआ तो भी एग्जाम्पल दो, अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि सामने इंटरव्यूअर है, तो एक्सप्लेन करना आना चाहिए अच्छे से। And next question like 4 plus important. The OOPS actually 4 plus. You should know the 4 plus with code, not only the theory. Abstraction, abstraction, एक रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें तो डेफिनेशन आना चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन, 4 प्लार का तुम्हें क्या क्या चाहिए देखो, हर किसी के लिए डेफिनेशन, उसके बाद रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, एंड थर्ड तुम्हें कोड आना चाहिए, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कोड। एंड सेकेंड यूज कहाँ पे होता है, और तुमको यूजेस पूछ लिया, या एडवांटेज वो भी आना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी पूछ लिया। सेम एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन भी सेम, कैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस में भी सेम, लेकिन इनहेरिटेंस में कुछ टाइप होता है, तुमको हर टाइप आना चाहिए विथ कोड। क्योंकि तुम अगर 4 पे हो 8 पे कोई भी जॉब, दे आक्स दे कैन आक्स इनहेरिटेंस,
There's a multiple inheritance. And whoever people in the Java people, you should know Java does not support multiple inheritance. Also, multiple inheritance, multi-level, multi-level, and single and hybrid. You should know all the types of inheritance. And Java, why Java does not support multiple inheritance? जो भी जावा में करना चाहिए वो तो आएगा ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है द डायमंड प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकते हैं यहाँ से। ज्यादा से मोस्टली थ्योरी पूछता है, लेकिन तुम्हें कोड भी आना चाहिए, बेसिक कोड। एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पहले वही तुमको डेफिनेशन आना चाहिए, रियल लाइफ एग्जांपल, इनहेरिटेंस के चाइल्ड एंड पेरेंट, एंड एब्स्ट्रैक्शन जब कैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन लाइक कार चले तो, लेकिन कार कैसे चलते हैं पता नहीं होता है, फिजिक्स। ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म लाइक एक पर्सन, किसी का फादर हो सकता है, किसी के लिए भैया, किसी के लिए टीचर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू। पॉलीमॉर्फिज्म तुमका रियल लाइफ एग्जांपल डेफिनेशन, इसका टाइप आना चाहिए। दो टाइप होता है, एक ओवरलोडिंग, रन टाइम, सॉरी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम। तो उस, और क्या चाहिए यहाँ पे, मेथड ओवरलोडिंग, दो चीज है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। जो पाइथन में होता है ना, पाइथन मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है वो भी तुमको पूछ सकता है। तो पाइथन, जो पाइथन में है वो मस्ट भी नो, मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है, मेथड ओवरराइडिंग होता है पाइथन में। तुमको दोनों आना चाहिए, उस बेसिक कोड। ऐसा नहीं बहुत हाई फाई कोड नहीं, एक बेसिक कोड आना चाहिए, ताकि तुम इंटरव्यू को दिखा सकते हो। और तुमने इतना कर लिया, तुम्हारा उप्स खत्म हो गया। उसमें और भी बहुत सारी चीज, जैसे वर्चुअल फंक्शन, सी प्लस प्लस के लिए वर्चुअल फंक्शन एक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी आक्स नहीं करते इंटरव्यू में, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा, कभी आक्स नहीं किया। और फ्रेंड फंक्शन भी होता है, और एक एक्सप्लोर करना चाहते हो कर लेना ये सब चीजें। नेक्स्ट उप्स डन, नेक्स्ट डीबीएमएस। I will not explain DBMS everything. I will explain the part or the point which actually asked in the interview question. The most important the part is normalization. मैं वही चीज डिस्कस करूंगा जो इंटरव्यू में आया है। नॉर्मलाइजेशन चारों फॉर्म में है। नॉर्मलाइजेशन क्यों, व्हाई एक्चुअली नीड, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाई नीड, एंड जो फोर फॉर्म, उसका एक एक का कंडीशन आना चाहिए। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ कंडीशन क्या है, थर्ड एनएफ, एंड बी से एनएफ। हर एक का कंडीशन तुमको आना ही चाहिए, क्या कंडीशन है। सेकेंड मोस्ट आर्कली क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा यही आंसर है, एसिड प्रॉपर्टी। हाँ, एसिड, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसका एग्जांपल भी देना। हाँ, जस्ट डेफिनेशन मत बोला, डेफिनेशन थोड़ा एग्जांपल देना। तो कॉमन ये, मतलब डीबीएमएस में एक वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत मतलब बहुत। मैंने हर दो इंटर, मतलब हर एक्सपीरियंस पढ़ा, तीन में पढ़ा तो एक क्वेश्चन था ही, ऐसा क्वेश्चन है। एंड सेकेंड, तुम्हारा प्राइमरी की में आता है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, बहुत पूछता है, एंड सुपर की। कॉम्पोजिट की कभी नहीं पूछता, लेकिन फिर ये पढ़ के रखना है। लेकिन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की डेफिनेशन, एंड ऑल्सो कांस्टेंट, जो जो कांस्टेंट है वो भी पढ़ लेना। जैसे नाल कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, टाइप 6 कांस्टेंट है नाल एंड चेक, और भी है, थोड़ा देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। एंड देयर इज वन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक्चुअली क्या है, इंडेक्सिंग इतना इंटरव्यू के लिए। और थोड़ा मोड़ा वो भी पढ़ना है, डीबीएमएस के एडवांटेज कभी कभी पूछ लेता है, तो एडवांटेज व्हाट इज डीबीएमएस एंड डीबीए, तो डेटाबेस, डीबीए, and disadvantage of DBMS. So why actually need DBMS? So what is DBMS? They can ask.
but mostly they ask the acid property and normalization, primary key, sub query, SQL versus NoSQL, and indexing. What is indexing in DBMS, not array indexing? Okay, and the DBMS from the DBMS, and there's any other relation. What is like relational? SQL is a relational database, so they can ask directly what is relational database. And now moving to the SQL. From the SQL, they ask directly coding. Coding in SQL code. They can ask syntax basically. The most important question for any type of company is find highest salary or highest mark. Highest salary और मार्क्स। बेसिक डीएन प्रोग्राम में मार्क्स अभी का जो डीएन प्रोग्राम है कुछ दिन पहले इंटरव्यू उसमें फाइंड हाईएस्ट मार्क्स पूछा था एंड हाईएस्ट सैलरी और दे कैन आस्क द फाइंड एनीथ हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट सैलरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या क्या पूछा था ज्वाइन दे हैव आस्क्ड ज्वाइन I have already made video around the join you can watch if you need you can watch also। मैंने join का वीडियो बनाया है देख लेना join का वीडियो मिल जाएगा मेरा इन SQL join must watch you need to know all types of join in syntax सिर्फ थ्योरी नहीं यहाँ पे syntax क्योंकि SQL का कोड होता है तुम्हें syntax भी आना चाहिए and aggregate function they have asked aggregate function join asks के अभी DN में aggregate function फिर aggregate function के max and average ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों ask किया DN प्रोग्राम में तो max and average aggregate function के बारे में बताओ। and next question and also in you should know the from the oops you should know heap memory and stack heap versus stack memory I have missed this one and try catch if if for every type of language you are doing C++, Java or Python, you should not try and catch और exception handling डीएन प्रोग्राम में पूछा था ये वाला क्वेश्चन एक्सेप्शन कैसे हैंडल करोगे तुम तो तुमको ये वाला क्वेश्चन आना ही चाहिए ताकि कुछ भी हो जाए और कुछ है स्किल में इतना ही बीच बीच में हाँ तुमको ये भी पूछेगा ये भी पूछा था ड्रॉप वर्सेस ट्रैंकेट वर्सेस डिलीट ट्रैंकेट वर्सेस डिलीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉप वर्सेस ट्रैंकेट वर्सेस डिलीट डिलीट क्वेरी मैं क्वेश्चन मुझे राइट थे एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड हाईएस्ट मार्क वो तो मैंने पहले ही पूछ दिया एंड और एक क्वेश्चन पूछा था डीएन प्रोग्राम में लाइक you need to store employee and their skill and give an input for skill and find all employee with that skill और तुमको बेसिकली हायर कीवर्ड आना चाहिए हायर स्किल में वो तो इम्पोर्टेंट है हायर क्या कर लो ज्वाइन कर लो एग्रीगेट फंक्शन एंड ड्रॉप ट्रंकेट डिलीट इतना कर लो हो जाएगा साथ में दिस क्वेश्चन एसक्यूएल के लिए तो डीबीएमएस उप्स कंप्लीट होगा सीएन के लिए अगर तुमने सीवी में सीएन स्पेसिफिकली मेंशन किया तो तुमको हर चीज आना चाहिए इफ यू हैव नॉट मेंशन दे कैन आल्सो आस्क एंड तुम मेंशन नहीं किया तो सीएन में क्या आस्क करेगा ओएस ओएस तुमको लेयर जो 7th या 5th पता नहीं कितना लेयर मैं भी भूल गया वो जो लेयर होते हैं तुमको लेयर आना चाहिए 7 लेयर ओएस का 7 लेयर होता है ओएस से 7 लेयर एंड टीसीपी वर्सेस यूडीपी एंड तुमको चाहिए डोमेन क्या होते हैं और डोमेन्स एंड नेक्स्ट तुमको आईपी IP4 IP6 एंड तुमको जो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल में जो तुम्हारा एसटी प्रोटोकॉल एच टी टी पी एंड और एक होता है HTTPS फिर FTP प्रोटोकॉल आना चाहिए फॉर द बेसिक तुमको सीएन का डेफिनेशन आना चाहिए एडवांटेज फिर इतना आना चाहिए बेसिक सीएन में एंड नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन के स्किल में तो तुमको तो अच्छे से आना चाहिए अगर मेंशन नहीं किया फिर भी तुमको व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एडवांटेज फिर फिर टाइप्स ऑफ ओएस एडवांटेज एंड नेक्स्ट तुमको क्या आना चाहिए टाइप्स ऑफ ओएस हो गया एडवांटेज हो गया इसका प्रोसेस जो होता है ना स्टेट स्टेट ऑफ प्रोसेस
मस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड थ्रेड वर्सेस प्रोसेस, ये बहुत बार आस्क है, ये सब चीजें तुमको आना ही चाहिए। साथ में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड डेडलॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का बेसिक व कौन सा एल्गोरिदम है, कहाँ यूज करना है, तुम इतना बोल सकते हो। और एल्गोरिदम का नेम, और तुमको डेडलॉक आना ही चाहिए। डेडलॉक क्या होता है, दे कैन डायरेक्टली आस्क डेडलॉक, द व्हाट इज डेडलॉक, मोस्टली क्वेश्चन आस्क डेडलॉक। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तुमको सिर्फ मॉडल आना चाहिए, जो वाटरफॉल मॉडल, मोस्टली आस्क द वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल, ये दोनों मॉडल ही आस्क करता है। और भी मॉडल है, स्पाइरल मॉडल, लेकिन ये दोनों मॉडल तुमको आना ही चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल और एजाइल कोई भी एक आस्क करेगा, बाकी मॉडल पूछता नहीं। तो तुम्हारा कोर्स सब्जेक्ट हो गया, कितना कवर हो गया। कोई एप्टी नहीं पूछता, लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछता, बीच बीच में पजल हो सकता है लेकिन बहुत कम। तो पहले कोडिंग पूछेगा, और कोई भी पूछ सकते हैं। एंड देन course subject done, and then ask HR question and your posit. I have already made video regarding HR and posit. So what's top 50 HR question and top 50 posit question? I have already made video. Just watch. तो पोजिट हो गया, कोडिंग हो गया, कोड हो गया, और कुछ हो सकता है। हाँ, लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी मेंशन है, उस टेक्नोलॉजी का बेस्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे तूने प्रोजेक्ट में मेंशन सीएसएस, हाँ, एक डीएन प्रोग्राम ऐसा हुआ, किसने सीएसएस किया था, तो उसको सीएसएस सिलेक्टर पूछा। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट है स्प्रिंग, डीएन प्रोग्राम में स्प्रिंग का बेसिस में क्वेश्चन किया था, क्योंकि डीएन प्रोग्राम स्प्रिंग था, उसमें स्प्रिंग बूट। और प्रोजेक्ट में जो भी मेंशन करके, लाइक तुमने मेंशन किया जावा स्क्रिप्ट ने प्रोजेक्ट किया, दे कैन आस्क जावा स्क्रिप्ट क्वेश्चन आल्सो। तो अलग हो गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट में जो होगा, जो टेक्नोलॉजी तुमने यूज किया तुम्हारा प्रोजेक्ट में, उसका बारे में आना चाहिए बेसिक। तो डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा उसमें भी। अगर तुमने प्रोजेक्ट में मिला एआईएमएल, दे कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट द एआईएमएल और पाइथन रिलेटेड क्वेश्चन। अब लैंग्वेज बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिलता हो, लैंग्वेज बेस्ड, और तुम्हारा लैंग्वेज जावा है, दे कैन आस्क हैश मैप, array list, finalize keyword, array list. There's one keyword final, finalize, and finale something, finale. And if you're doing Python में क्या होता है, they can ask list, dictionary, and set, and what is depth keyword in Python, and also the argument asterisk argument, the function में एक argument होता है asterisk argument, and also Python में और क्या पूछ सकते हैं, init function और initialize in the oops. And Java में new keyword, they can ask new keyword or this keyword. This keyword can ask any type of language. So you must know this keyword. हाँ, इतना ही काफी है तुमको। हाँ, अगर तुमने अगर AML पूछा तो एसक्यूएल एंड लाइब्रेरी बहुत सारा क्वेश्चन, वो तो अलग है। अगर सी प्लस प्लस किया तो तुमने सी प्लस प्लस से बहुत कॉमन चीज है, डेटा टाइप। सी प्लस का डेटा टाइप क्या है। हाँ, फिर सी प्लस का एडवांटेज। हाँ, फिर पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर क्वेश्चन। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन डीएन प्रोग्राम हैश में एरे लिस्ट किया था। हाँ, और न्यूक्लियर डिस्क्वाड बहुत बार आस्क किया। एंड पाइथन का लिस्ट डिक्शनरी सेट, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इतना आना ही चाहिए तुमको अगर कोई भी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में भी सेम डेटा टाइप पॉइंटर, मोस्टली पाइथन जावा हुआ तो तभी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होता है। और कुछ छूटा और कुछ तो नहीं छूटा। तो तुम्हारा कोडिंग में क्या को क्वेश्चन आना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, मैंने कवर कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर्स सब्जेक्ट में तुमको एक्चुअली क्या आना चाहिए, बहुत चीजें है। एंड कहाँ से पढ़ो, तुम कोर्स सब्जेक्ट अगर डीबीएमएस कोड हेल्प, या कोई भी लेक्चर, मैंने तो टॉपिक बोल दिया। अगर तुम और भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल से एक्सप्लोर करो। और ओएस का कोई भी देख लो, अन एकेडमी, गेट स्मैशर, मैं जो टॉपिक बोल दिया। और सीएन का भी गेट स्मैशर देख लो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी गेट स्मैशर से देख लो। और तुम्हारे एसक्यूएल, एसक्यूएल जो बोला, और या W3 स्कूल बोल के एक है, W3 स्कूल, वहां से पढ़ लो। एसक्यूएल बहुत अच्छा है, बहुत मस्त, मस्त है। एंड एन HR project question, I have already made video, just watch.
Now, if you have any type of doubt, you can ask. Let's see in the next lecture.